but definitely we'll talk about the other pathologies of the salivary gland as well. Now again, why the salivary gland is given in Robbins in the head and neck chapter, but it is discussed over here in the gastrointestinal module because it has role in digestion of the food. So just anatomically as it is there, so it is head and ear, you will find the same topics or same content in the head and neck in the Robbins, which we usually follow, but it is as in the JSNU module, the salivary gland part of the pathology is covered in the gastrointestinal tract. So when we talk about the salivary gland tumors, basically we will divide our lesions into three. That is which is common for most of the special pathology part. So they are either inflammatory, secondary to obstruction, and then there are neoplasms or neoplastic lesions, which definitely involve both benign and malignant tumors. So when we talk about inflammation, inflammation can be secondary to infection, or another very common cause in which the inflammatory system of our body reacts is autoimmunity. When the body cells, which we have talked about in the general pathology, that your immune system start destroying your own body cells, that is autoimmunity. So in inflammatory part, we'll talk about the infections, and then we'll talk about an autoimmune disorder, which is pretty common and particularly involve this part of the body, which is salivary gland. And then when we talk about the obstructive lesion, as we have already gone through in the anatomy, that if anatomically you look at the salivary gland, what salivary gland look like? The salivary gland has a parenchymal part, which is composed of acini, responsible for the secretion of the different products which make up the saliva, and then there is a duct which take this secretion from the parenchyma to the oral cavity. Why nature has provided a duct system which carry the saliva or which carry the secretions of the gland to the oral cavity? The reason being that if there is extravasation or spillage of those secretion into the normal tissue of the body, it is going to harm it. So obstruction, whenever there is obstruction, the obstruction can be secondary to stone formation, which is called silolithiasis. Sometimes it can be secondary to inflammation, which lead to stricture formation. What stricture is? When the lumen is narrowed, it is called stricture formation. And then we'll talk about the neoplasms as well. So although the topic is salivary gland, but when the patient comes to the clinic, he does not come with a complaint that I have this salivary gland issue. He will come to a clinician, to a GP, which as most of you are going to be the clinicians, not the histopathologist. So basically, the patient will come, does not saying that I have this salivary gland lesion. Patient will come that I have a swelling in the neck or in the or in any part of the face. Now, where we expect to have salivary glands, there are major salivary glands and minor salivary glands. What are the major salivary glands? Major salivary glands are like parotid, like submandibular gland, and then there are minor salivary glands. Okay, and I would love if I have been in the class and I am going to ask that where normal salivary glands are there in the body. They are there in the oral cavity. They are there in the upper aerodigestive tract, and then in the breast as well. So sometimes, although rarely, but the same pathologies of salivary gland, you can see a same neoplasms of the salivary gland. You can have the same tumors in the esophagus, larynx, or even in the breast. Why? Because anatomically, the minor salivary glands are present at all these sites. Okay, so coming back to the topic, that the patient is not going to come that I am having this salivary gland swelling. How the patient will come to the clinician? The patient will come that I have a neck swelling. When there is a neck swelling, it is very important that what is the site. Now, if I'm sitting in a clinic and I ask you to describe this lesion, where the lesion is. So what we can see over here,
that where the lesion is in the neck, right in the center of the neck, and then you can see okay, there is some swelling in the submandibular area also. But the most prominent part which we can appreciate over here in the center of the neck is a swollen part. Now, what is the differential diagnosis? The differential diagnosis is that there could be a pathology in the submandibular gland, because if we talk about the salivary gland, the gland which is located over here is submandibular gland. So inflammation of the submandibular gland, any autoimmune disorder which is causing submandibular swelling causes the same. And but just particularly looking over here in the neck, another anatomically which structure is going to be there? Thyroid. So if this swelling moves with the swallowing, okay, swelling moves with the swallowing, then it must be related to the thyroid. Why we expect to have thyroid gland lesions over here? Because anatomically it arises from the tongue and then it descends. So thyroglossal cyst, which is one of the common cystic lesions, is usually at this location. So just to emphasize that when we talk about the neck, it is not only the salivary gland pathologies, there may be some rare cystic lesions which are unique to this site. So we'll quickly go through those lesions as well. Another swelling. Now, where the swelling is? Now the swelling is on the lateral aspect of the neck. Okay. So when the swelling is on the lateral aspect of the neck, anatomically this could be secondary to यहाँ पे major salivary gland कौन सा होगा? Parotid. So there could be any pathology of parotid. The pathology of the parotid could be again inflammatory, again neoplastic. But another thing which could be over here is enlarged cervical lymph node, which is pretty much more common than the salivary gland swelling. So you have to keep it in mind. And then, as I said, that there are two or more cystic unique lesions to this site, which we'll go through the lecture. That branchial cyst is going to be here. So here we have three differentials: pathology related to parotid, number 2 enlarged salivary gland, number 3 is the branchial cyst, and number 4 is something which could be related to trauma. And then there is a unique tumor which used to be over here, which is also not related to salivary gland, that is paraganglioma. Okay, so your clinical differential change with the location of the swelling in the neck. It could be salivary gland, it could be related to some of the unique cysts which are particularly only over here. So this is just a surgical removal. When there is a benign thing, it usually comes out very clearly and could be easily separable from the facial planes because it does not have infiltrations into the surrounding soft tissue. Okay, starting with the salivary gland pathology. So, what is the normal function of the salivary gland? Okay, the normal function of the salivary gland is the secretion of saliva. Now, what saliva is, definitely we have gone through it in pathology. Saliva kya hota hai? This is a unique biological fluid which is secreted by the gland. And if we talk about the composition, it has different components. Mostly, say 90% of the times it is water. But what other things are there? There are enzymes like amylase. Then there are ions like sodium, like calcium, like bicarbonate. Then it has some it can have some bactericidal secretions. Bactericidal products like lysozymes. So depending on the composition, why the nature has given this composition to the saliva is because the saliva has to do different functions. Now again, coming back to the normal composition, why the nature has given bicarbonates in it, just to alter the pH, that it make it alkaline. The caries which I have talked about in last lecture, उसमें क्या होता है कि जब sugar fermentation होती है तो acidic products release होते हैं, and those acidic products are actually responsible for the decay of the tooth material. So जो हम टूथपेस्ट करते हैं इसमें बेसिकली क्या होता है, अल्कलाइन होता है, तो उसका पीएच चेंज कर देता है. तो नेचर में भी सलाइवा को जो चीज उसमें नॉर्मली दी गई है वो क्या दिया गया है कि उसमें बाइकार्बोनेट जो कि पीएच को
चेंज करते हैं, ठीक है। और मिनरलाइज और कैल्शियम क्यों है, ताकि जो मिनरलाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है ओरल कैविटी में उसको फैसिलिटेट किया जाए। उसके बाद why there is lot of water, there is lot of water ताकि जो फूड पार्टिकल आपने फूड पार्टिकल हम सॉलो करते हैं वो ब्रेक डाउन होता है एंड टू मेक इट मॉइस्ट। जब वो फूड पार्टिकल मॉइस्ट होता है तो नंबर वन इट इज इजी टू सॉलो, नंबर टू this if the moisture of the oral cavity is maintained the actually the mucosal epithelial cells layer intact, ठीक है। जो अंदर की म्यूकस एपिथेलियम है अगर स्लाइवा होगा तो वो उसको मॉइस्ट रखेगा। और जैसे अगर आप यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सॉइल, अगर सॉइल है आप उसके ऊपर पानी नहीं डालेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो नॉर्मल म्यूकोजा है अगर उसमें by the nature has given saliva a lot of water content, because water content जो है म्यूकोजल सेल्स को इंटैक्ट रखता है। अदरवाइज जिस तरह सॉइल में क्रैक्स पड़ते हैं उस तरह म्यूकोजा में क्रैक्स पड़ जाएंगे, और जब म्यूकोजा में क्रैक्स पड़ जाएंगे उसकी एपिथेलियम डीजनरेट हो जाएगी, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि वहां पे अल्सर्स बन जाएंगे, ठीक। सो what the term xerostomia means, xerostomia means something which causes dry mouth, ठीक है। ड्राई माउथ कब होगा, जब साइवा की सिक्रीशन कम हो जाएगी। अब क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि वी शुड नो द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच कॉजेस ड्राई माउथ। शोजरान सिंड्रोम, शोजरान सिंड्रोम हमने यहाँ पे हेड एंड नेक में साइवरी ग्लैंड में करना है, क्योंकि ये दिस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर which particularly involve this anatomic site of the body, and it is covered over here, and you can expect to have questions in any of your undergraduate exams, although not in detail but something related to Sjogren's syndrome. So this autoimmune disorder, not much detail but something needs to be done over here, because this syndrome anatomically involves this particular site of the body, ठीक। तो Sjogren's syndrome में क्या होता है, Sjogren's syndrome में basically the antibodies are produced like any other autoimmune disorder, and it is going to destroy the parenchyma of the salivary gland, ठीक है। जब से parenchyma of the salivary gland destroy होगा, इनिशियली क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, जहाँ पे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है एडिमा होता है, वहाँ पे कंजेशन होती है और एरिया स्वेल कर जाता है। तो अगर जिस पॉइंट पे किसी को Sjogren's syndrome की इनिशिएशन है एंड इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई है, वहाँ पे एडिमा होगा और वो ग्लैंड्स एनलार्ज मिलेंगे आपको उस पॉइंट पे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, अगर ट्रीट नहीं होगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द salivary gland parenchyma, और जब salivary gland parenchyma डिस्ट्रॉय हो जाएगा वहाँ पे कोई secretions नहीं होंगे। जब कोई secretions नहीं होंगे तो it will lead to dry mouth, or the other name, the scientific name of the dry mouth is xerostomia. So I again repeat what Sjogren's syndrome is. This is an autoimmune disorder in which antibodies are produced against the salivary glands. In the initial part of the disease or in the earlier phase of the disease, there is inflammation, edema. As a result, if you look at that patient at that point, the salivary gland appears swollen, ठीक है, enlarged मिलेंगे। लेकिन अगर ये process continue होता रहेगा, patient will not take treatment or the patient remain underdiagnosed, the glands are going to be destroyed, and once the glands are going to be destroyed, then there are no secretions, and the consequence is dry mouth or xerostomia. So if I asked you that if a patient is having Sjogren's syndrome, patient को bilateral swelling होगी या unilateral swelling होगी, ठीक है। तो usually क्या होगी, bilateral swelling होगी। क्यों bilateral swelling होगी, क्योंकि उसका cause systemic है, वहाँ कोई local cause नहीं है। एक बात याद रखिए कि जब भी salivary gland में obstruction होती है, जो stones होते हैं, stricture होता है, bacterial infections होते हैं जो कि thick pus secrete कर रहे होते हैं, उससे duct obstruct हो रही, तो usually क्या होता है कि एक साइड की swelling होती है। लेकिन जो systemic diseases होती है, like viral diseases like mumps and like autoimmune disorder Sjogren's syndrome, जिसमें आप patient आपके पास कैसे आएगा, bilateral swelling के साथ, ठीक है। सो पैथोलॉजी के साथ साथ अगर जब तक आप उसकी क्लिनिकल फीचर्स को मैच नहीं करेंगे ना आपको ये पैथोलॉजी याद रहेगी। सो Sjogren's syndrome में क्या होगी, बायलेटरल स्वेलिंग होगी। मम्स जो वायरल इन्फेक्शन है जो यहाँ पे salivary gland के साथ टेस्टिस को इन्वॉल्व करता है, वो भी एक सिस्टमिक इन्फेक्शन है, क्या होता है उसमें भी बायलेटरल स्वेलिंग होगी। लेकिन जब साइलोलिथाइसिस हो रहा होगा, वो क्योंकि लोकल प्रोसेस होता है, तो उसमें यूजुअली ऑल्दो 100% इज नेवर अ रूल इन मेडिसिन, इन पैथोलॉजी एज वेल, सो उसमें क्या होगा कि उसमें सिर्फ आपको
यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। नाउ रेडिएशन थेरेपी अगेन किसी को हेड एंड नेक का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हुआ है, उसके लिए रेडिएशन की है, एज अ रिजल्ट जो है साइटिक ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड इट लीड टू xerostomia. Then coming to drugs, number of drugs, specifically if patient is using 4 or 5 drugs, uh, namely thiazide diuretics, anticholinergics, antipsychotics, so those all will lead to xerostomia और dry mouth. अब ये drugs क्यों करती है xeros? Thiazide diuretic क्या है? Thiazide diuretic जो है basically क्या करती है कि फ्लूइड्स की सिक्रीशन को बॉडी से रिलीज करती है, मतलब इट इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ द एक्सक्रीशन ऑफ द फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी. अब जैसे पहले डिस्कस किया कि साइवा में है क्या, बेसिकली इट इज वाटर. तो जब बॉडी से जनरलाइज वाटर लॉस हो रहा होगा, जनरलाइज एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर इंक्रीज हो रहा होगा, तो वही एक्सक्रीशन ऑफ वाटर सलाइवा से भी ज्यादा हो जाएगा. So thiazide, that's one of the side effects of thiazide diuretic is xerostomia और dry mouth. इसी तरह ये जो एंटी साइकोटिक्स क्या करती है? They play with the sympathetic and parasympathetic nervous system. So when they alter the sympathetic parasympathetic system, it is going to alter the secretions, and when they alter the secretions, there is also can lead to xerostomia or dry mouth. इसी तरह anticholinergics parasympathetic system को disturb करेंगी. जब वो parasympathetic system को disturb करेंगी, so it will lead to dry mouth or xerostomia. So although that seems unimportant, but actually it is not. Thiazide diuretics, anticholinergics, that are the drugs pretty commonly taken by the people, and this is the reason of why they lead to this complication. Now, what could be the possible complication? The possible complications क्या क्या हो सकती हैं? वही हो सकती हैं जो कि हमने अभी पढ़ी कि साइवा का नॉर्मल फंक्शन क्या है. साइवा का नॉर्मल फंक्शन क्या है? कि it help in swallowing. Why it help in swallowing? Because it keep the why it help in swallowing? Because it keep the food particle, it assemble the food particles, make them soft, so it is easy to swallow. So once the salivary gland saliva is not there, the swallowing will become difficult. Number one. Number two, इसमें हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर कैल्शियम का कंटेंट भी होता है, जो बेसिकली जिसका फंक्शन ये है कि मिनरलाइजेशन डीमिनरलाइजेशन को मेंटेन करता है. So once with mineralization demineralization का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो मेंटेन नहीं होगा, तो कैरीज हो जाएगी. और कैरीज होने का एक या टू डिके होने का एक और रीजन यहाँ पे ये भी होता है कि यहाँ बायकार्ब होता है, which change the acidic environment of the oral cavity. So once it is not there, it is easy for the bacteria, for the breakdown of the tooth material. और व्हाट कुड बी अदर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस? जब ड्राई माउथ होता है तो वहाँ पे कैंडिडियासिस भी होता है. ठीक है, कैंडिडियासिस हमने जब लास्ट टाइम लेक्चर में कैंडिडियासिस किया था तो हमने क्या कहा था? इट इज अ कमेंसल व्हिच कैन बिकम पैथोजेनिक. और अगर इफ यू रिकॉल द causes which we did over there, what are the causes which causes, what are the things which causes candidiasis? The one is the patient who is taking number of the drugs or immunocompromised. Yes, sick patients जिनकी hydration maintain नहीं होगी, dry mouth हो जाएगा और it will lead to infection. So moving to next slide, Sjogren syndrome. Sjogren syndrome is an autoimmune disease. This is collagen vascular disorders. Sign and symptoms क्या होते हैं? जब अगर सिर्फ salivary gland को involve करे तो हम उसको Sjogren syndrome कहते हैं. But if it has also involved the lacrimal glands and also causes dry eyes, so then we call it keratoconjunctivitis sicca. Keratoconjunctivitis sicca. Sorry, keratoconjunctivitis sicca. I know it's difficult to spell and remember, but you have to. Okay. So xerostomia, then connective tissue disorders, it can lead to xerostomia. We have already talked about क्यों xerostomia करेगा, क्योंकि finally salivary gland को destroy कर देगा. कोई saliva नहीं होगा, जब कोई saliva नहीं होगा तो xerostomia या dry mouth होगा. फिर पर्सन में एक रूल है, जो पैथोलॉजी में बहुत सारे रूल हैं जो जनरल है. अगर किसी को एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो दैट पर्सन इज प्रोन टू डेवलप अनदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. तो अगर किसी को Sjogren syndrome है तो वो those patients are prone to develop rheumatoid arthritis. And as I already talked कि हमेशा ये बात याद रखिए, इन्फ्लेमेशन हमने जनरल पैथोलॉजी में पढ़ा था. बॉडी में जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होती है उस एरिया की वेस्कुलर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, एक्सट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड होता है, लीकेज फ्रॉम द कैपिलरी होती है.
and what all this process lead to edema. ठीक है, ये जो पहले टर्म ह्यूबर की निकली थी वो इसीलिए थी कि वो जगह स्वेल कर जाती है। तो इनिशियली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में जहां पे भी हो रहे होंगे either it is thyroid gland, it will lead to the enlargement of the glands and they can often cause recurrent silodenitis। ठीक है, जहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा होगा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी which is called silodenitis। So diagnose कैसे करते हैं? How to diagnose Sjogren's syndrome? The way to diagnose this is, although I know that you don't need to go in details, but just कि कोई आपसे पूछते हैं कि इसको कैसे diagnose करते हैं, तो this is diagnosed by doing biopsy of the lower lip, in which we look at the salivary glands and look at their lympho-reticular part, यानी वहाँ पे lymphocytes कितने हैं, plasma cells कितने हैं। बॉडी में जो भी autoimmune disorders होते हैं वो plasma cells वहाँ पे ज्यादा होते हैं। क्यों वहाँ पे प्लाज्मा सेल्स ज्यादा होते हैं? इसलिए क्योंकि प्लाज्मा सेल्स आर द सेल्स व्हिच आर अल्टीमेटली रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन द बॉडी। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीट द रिकरेंट इन्फेक्शंस। किसी को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया तो कुछ तो उसकी इम्यूनिटी को अल्टर करने के लिए इम्यून मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स देते हैं, स्टीरॉइड देते हैं, लेकिन अगर उसको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, क्यों रिकरेंट इन्फेक्शन होगा? क्योंकि बार बार ड्रग ऑब्स्ट्रक्ट होगी। And secondary, in some cases, the patients like autoimmune disorder को हम किसी को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, फिर उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के साथ देन ही हैज टू लिव विद द रेस्ट ऑफ द लाइफ। कुछ बहुत सारे केसेस में बहुत माइल्ड फॉर्म में चलता रहता है, कुछ केसेस में वो एग्रीवेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को Sjogren's syndrome है एंड दिस इज डिजीज, सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो है ना यंग एज की डिजीज है, तो अगर वो पेशेंट्स सर्वाइव करते हैं या मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स सर्वाइव करते हैं, तो वो जब जैसे जैसे उनकी एज इंक्रीज होती है तो देयर इज अ चांस ऑफ सुपर इम्पोज मेलिग्नेंसी। So if a mass appears surgical, तो अगर बहुत वहाँ पे mass increase हो रहा है, weight loss हो रहा है, तो हमें वहाँ पे क्या चीज रूल आउट करनी होती है? हमें वहाँ पे ये चीज रूल आउट करनी होती है कि कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं डेवलप होती। ठीक है, now over here I would love to question कि यहाँ पे आपके ख्याल से कौन सी मेलिग्नेंसी डेवलप होगी? क्या आपके ख्याल से यहाँ कोई एपिथेलियल ट्यूमर डेवलप होगा? आंसर इज नो। यहाँ पे कौन सी सेल्स की प्रोलिफरेशन हो रही थी? यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रही थी उन सेल्स की which are related to lymphoid system of the body। ठीक है, क्विकली क्योंकि अदरवाइज रनिंग आउट ऑफ टाइम, फिर टाइम हुआ तो बाद में डिटेल में जा सकते हैं। जहाँ पे भी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी होती है, either it is thyroid, either it is salivary gland, वहाँ पे कौन सी सेल्स की प्रोलिफरेशन हो रही है? These are not the epithelial cells, it is the lymphoid part of the body। ठीक है, लिम्फॉइड पार्ट में क्या चीजें आती हैं? लिम्फॉइड पार्ट में लिम्फ नोड आते हैं, बहुत सारे सेल आते हैं। तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा? लिम्फॉइड सेल के ट्यूमर को हम क्या कहते हैं? लिम्फोमा। ठीक है, तो यहाँ जो मेलिग्नेंसी डेवलप होगी वो कौन सी होगी? लिम्फोमा। ठीक है, तो Sjogren's syndrome की दो तीन चीजें याद रखिएगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? जब आईज को इन्वॉल्व करता है तो फिर सॉरी लैक्रिमल ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है तो ड्राई आईज होती हैं, जिसको केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका कहते हैं। डायग्नोज कैसे करते हैं? by the biopsy of the salivary gland of the lower lip over here, it is usually lower lip which is involved, and then it can develop malignancy as well, जिसको हम malignancy कौन सी होती है? lymphoma। okay, so inflammation के causes में now we have to be for sake of for interest of the time we have to move fast। So inflammation में basically inflammation कौन सी होती है? मैंने कहा बॉडी में कहीं भी inflammation होती है, infections हो सकते हैं, बैक्टीरियल, वायरल और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ऑटोइम्यून को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूजुअली यहाँ पे जब obstruction होती है स्टेफ ऑरियस होता है, लेकिन एक वायरल इन्फेक्शन जो यहाँ पे जरूर याद रखना है दैट इज मम्प्स। मम्प्स में पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? यूजुअली यंग एज में होता है, बायलेटरल फेशियल स्वेलिंग के साथ आता है और टेस्टिस को भी इन्वॉल्व करता है, इवन इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शंस में मम्प्स हमने साइवरी ग्लैंड में जरूर याद करना है। ओके, म्यूकोसील। म्यूकोसील इज अ टाइप ऑफ सूडोसिस्ट। मुझे कभी सिस्ट समझानी हो तो मैं इस तरह समझाती हूँ कि सिस्ट क्या होती है? सिस्ट इज लाइक अ बैलून। बैलून कैसा होता है? उसके अंदर हवा भरी हुई होती है लेकिन वो बैलून अंदर से खाली होता है। तो सिस्ट क्या होती है कि सिस्ट में ऐसा होगा टिश्यू स्वेल कर जाएगा, लेकिन जैसे आप बैलून को प्रेस करते हैं ना तो वो पिंच होता है, थोड़ा सा पिंच होता है फिर वापस आ जाता है, पिंच होता है वापस आ जाता है। तो बॉडी में कहीं पे भी सिस्ट होगी तो सिस्ट की क्या क्वालिटी होती है? वैसे सिस्ट को मैंने आपको बताया कि सिस्ट की और बैलून की एग्जांपल है। ठीक है, बैलून अंदर से सॉलिड नहीं होता, वो खाली होता है, उसके अंदर हवा भरी होती है। क्या होता है? मैं बैलून को ऐसे पिंच करूंगी, उसका साइज छोटा हो जाएगा, फिर मैं अपना वापस करूंगी तो ये वापस आ जाएगा।
ठीक है। तो इसको अगर मुझे साइंटिफिक उसमें या एग्जामिनेशन में बताना हो तो मैं कैसे करूंगी, ये फ्लक्चुएंट होते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो थोड़े बहुत सिक्रीशंस होते हैं वो ऐसे ऐसे आप दबाते रहते हैं, उसमें थोड़ी सी स्पेस होती है, तो एक जगह से, जैसे एयर के पार्टिकल्स, क्योंकि उनमें इतनी इंटरेक्शन नहीं होती, वो एक जगह से दूसरी जगह उसको पिंच करना आसान होता है रादर देन अ सॉलिड थिंग। जब आपने एट द टाइम ऑफ योर स्कूल साइंस में पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं, पता नहीं, अच्छा बार जिसमें आप सॉलिड, लिक्विड और गैस की कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं, ठीक है। गैस की कॉम्पोजिशन में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो उनको उसको दबाना आसान होता है। लिक्विड में भी कोई सी चीज, अगर प्लास्टिक कोल्ड ड्रिंक है उसमें स्पेस है तो आप उसको दबा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम सॉलिड को नहीं प्रेस कर सकते। तो फ्लूइड, तो सिस्ट क्या होती है, एक चीज है समझे जिसके अंदर एयर है या थोड़ा सा फ्लूइड है, उसमें जगह है, तो इसको क्लिनिकली सिस्ट आपको कैसे पता करिए, जब आप उसको पिंच करेंगे तो वो फ्लक्चुएट होती है, यानी आप उसको प्रेस कर सकते हैं। यही अगर सॉलिड है तो सॉलिड में हम क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते तो उसको हम प्रेस नहीं कर सकते। ओके, सो म्यूकोसील भी क्या होती है, म्यूकोसील समझें कि एक जो है ना छोटी सी सिस्ट होती है। म्यूकोसील को समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन, हम सारा ऑटो इम्यून जो है उसके ऊपर इतनी लंबी डिस्कशन हो गई क्योंकि वो इस साइट पे इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन लीजन होता है दैट इज म्यूकोसील। सो मोस्ट कॉमन लीजन द साइटरी ग्लैंड विद इज द म्यूकोसील। अब म्यूकोसील डेवलप क्यों होती है, म्यूकोसील डेवलप होती है जैसे मैंने बताया कि नेचर में साइटरी ग्लैंड में सारे अपने सिक्रीशंस, सारे एंजाइम, सारा प्रोडक्ट साइटरी ग्लैंड का बनता है उसके पेरेन्काइमा वाले पार्ट में, और फिर एक डक्ट होती है जो सारे सिक्रीशंस को ओरल कैविटी में लेके जाती है। तो म्यूकोसील में क्या होता है, और ये नेचर ने ये डक्ट क्यों दी है, आइदर की पेंक्रियाज है जिसकी सिक्रीशंस पेंक्रियाज से बनती है, और फिर एक डक्ट है जो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाती है। तो नेचर ने ये डक्ट क्यों प्रोवाइड किए, क्योंकि अगर उन सिक्रीशंस की स्पेलेज होगी इनटू द नॉर्मल टिश्यू, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू हार्म द टिश्यू। तो म्यूकोसील में भी यही होता है कि साइटरी ग्लैंड में सिक्रीशंस बनते हैं, वो जो डक्ट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब वो डक्ट डिस्टर्ब हो जाती है तो एक क्या होता है, जो साइटरी ग्लैंड की सारी सिक्रीशंस हैं वो नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं। और उसमें अगर हमें याद हो तो उसमें क्या थे, उसमें एंजाइम्स थे, उसमें आयंस थे, और लार्जली वाटर था। तो जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये सब चीजें बर्स्ट करेंगी तो क्या होगा, उनकी कनेक्टिव टिश्यू स्वेल कर जाएगा, वहां पे पेन होगा, वहां पे न्यूट्रोफिल्स होंगे, और वो अल्टीमेटली ये सारी चीजें अमलगम बना के एक सिस्ट टाइप की चीज बना देंगे जिसको हम म्यूकोसील कहते हैं, ठीक है। So most common lesion of the salivary gland with a consequent leakage into the surrounding connective tissue stroma because of the breakage in the duct system. Usually कहाँ पे होती है, लोअर लिप पे होती है। अब ये क्यों अपर लिप पे क्यों नहीं होती, लोअर लिप पे क्यों होती है, और दूसरा ये किस एज ग्रुप को अफेक्ट करती है, ये उस एज ग्रुप को अफेक्ट करती है जिसमें जो है फॉल का चांस ज्यादा होता है, या तो ये गिरने का चांस या रिस्क ऑफ फॉल किस उम्र के लोगों में ज्यादा होता है, या तो बहुत छोटे टॉडलर्स हैं जो who are just learning how to walk, या बहुत ओल्ड एज के पेशेंट हैं जो वीक हैं और जो बार बार जिनके गिरने का चांस होता है, तो उन्हें जब वो गिरते हैं तो देयर टीथ आर गोइंग टू स्ट्राइक देयर लोअर लिप। इसीलिए अपर लिप पे क्यों नहीं होती, लोअर लिप पे क्यों होती है, क्योंकि इसकी टियोलॉजी की सेकेंडरी टू ट्रॉमा होती है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, म्यूकोसील में सॉर्ट ऑफ सिस्टिक टाइप ऑफ द लीजन जिसमें साइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन सॉफ्ट टिश्यू में एंटर हो जाते हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन करती है, वो सारा जो अमलगम बनता है वो एक सिस्ट बन जाती है। और लोअर लिप को क्यों करती है, इस लोअर लिप याद रखेंगे तो आपको खुद ही याद रहेगा कि इट इज सेकेंडरी टू ट्रॉमा होता है। और सेकेंडरी टू ट्रॉमा उन सारे लोगों, किन लोगों में ज्यादा होता है, उन लोगों में ज्यादा होता है जिसमें हिस्ट्री और जिसमें दे आर मोर रिस्क ऑफ फॉल, दैट इज टॉडलर्स, जो बच्चे जो चलना सीख रहे हैं, जो बार बार गिरते हैं संभलते हैं, या फिर जो है बहुत ओल्ड एज के पेशेंट्स हु आर फॉर सम अदर रीजंस। ओके, सो दिस इज अगेन, मैंने पिछले लेक्चर में बहुत लंबी तकरीर की थी जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाह रही कि प्लीज रॉबिन्स की पिक्चर्स कर लीजिएगा। ऑस्पी जेएसएमयू में ज्यादातर यहाँ से आती है, जो किताब मर्जी करें, वी डोंट केयर, लेकिन ये आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये पिक्चर करें। अब ये क्या है, म्यूकोसील, मैंने आपको बताया कि क्या है, स्वेलिंग है, ठीक है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे ये स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। आपने देखा ये स्वेलिंग है, यहाँ पे कौन सा पार्ट अफेक्ट है, जो हमने कहा लोअर लिप, ठीक है, और ये यहाँ पे सारे सिक्रीशंस जमा होकर इसको स्वेलिंग बना दिया। अब अगर इसको कहते हैं कि फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होती है, ठीक है, फ्लक्चुएंट, मैं एक दबाऊंगी दूसरी तरफ से तो वो फ्लूइड उसका मूव करेगा, तो आई एम एबल टू डिप इन, ओके, नाउ व्हाट दिस इज, so this is the photomicrograph of the same. This is the photomicrograph of the same. What we can. This is a photomicrograph of the same. What we can see over here is
what we can see over here is the salivary gland, and then this is a cystic area, which is lying by the inflammatory cells. Ranula is same, which is mucosal. The only difference between the ranula and the mucosal is that the location. ठीक है? Ranula कहाँ पे located होता है? Ranula located होता है at the okay. So where the ranula is located? It is located at the floor of the mouth. Floor of the mouth पे आपके कौन सी duct है जो floor of the mouth पे होती है? ये लिंगुअल ग्लैंड है, लिंगुअल ग्लैंड की डक्ट की फ्लोर ऑफ द माउथ होती है, इसलिए रेन्यूला भी फ्लोर ऑफ द माउथ पर होता है। और जब ये बहुत बड़ा हो जाता है इसको एक फैंसी नेम दिया हुआ है, जिस फंगिंग रेन्यूला। अगेन फ्रॉम रॉबिन्सन, जस्ट क्विक थायरोग्लॉसल सिस्ट हमने पहले कर ली। थायरोग्लॉसल सिस्ट कहाँ पे होगी? सेंटर ऑफ द नेक में होगी। 50% पेशेंट्स जो है लेस देन 20 इयर्स पे होंगे, मिड लाइन पे होगी, एंड इट एलिवेट्स ऑन swallowing और प्रोड्यूशन। ठीक है, रूल ये है कि जो भी चीज बॉडी में थायराइड से रिलेटेड है वो सेंटर ऑफ द नेक में होती है और सॉलोइंग पे प्रोट्रूड करती है। इससे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये it has something to do with the thyroid. Okay, branchial cyst is anterior to sternocleidomastoid. The photograph of the patient which we have looked in the initial was on the lateral aspect of the neck. It may get infected, persist. If this develop as a persistence of second branchial cleft cyst, and it may get infected as a small sinus tract and cholesterol cleft. So basically, just to discuss the differential. Now, a very rare tumor. This is not paraganglia. It is periganglioma. It is wrongly written over. Periganglioma or carotid body tumor lateral part of the neck में होता है। और ये क्यों डेवलप होता है? क्योंकि यहाँ पे पैरागैंग्लिया होते हैं विद सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरागैंग्लिया क्या होते हैं? These are the clusters of neuroendocrine cells. So जो clusters of neuroendocrine cells होते हैं, they give rise to a tumor which is called paraganglioma. और ये थोड़ा सा बस ये याद रखिएगा कि ये मेन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, ये सारे सिंड्रोम आपकी बॉडी में आते हो या नहीं आते हो, लेकिन कुछ सिंड्रोम लाइक MEN1, MEN2 अगेन दीज आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। ठीक है, ये भी लेटरल नेक स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे नेक में तीन चीजें विच आर यूनिक टू द नेक आर ब्रांकियल सिस्ट, थायरोग्लॉसल सिस्ट एंड दिस कैरोटिड बॉडी ट्यूमर और paraganglioma. Okay. Now coming to salivary gland tumors. Looking at this table, you start thinking that Dr. Amna is going to take a lot of our energy to memorize this table. No, it's not there to memorize this table. I just want to show you that if you look at this table, what we can appreciate over here is कि although कि salivary gland में कोई 10-15 तरह के different tumors होते हैं, ठीक है, which are very difficult to learn and even I keep on struggling with that. लेकिन अगर आप देखिए तो इसके top left पे mostly कौन से ट्यूमर है? प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। ठीक है, 50%, यानी अगर मैं 100 ट्यूमर की स्टडी करने लगी हूँ तो 50 ट्यूमर्स तो उसमें ऑलरेडी जो है ना प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। ठीक है, तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा तो हमने करना ही करना है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की आपको हर चीज आनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद दिस इज द मोस्ट कॉमन, मतलब दो चीजें तो यहाँ पे पक्की याद रखनी है, एक प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा और एक म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इसलिए याद रखना है, दिस इज द मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर। म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा क्यों याद रखना है? दिस इज द मोस्ट कॉमन malignant tumor. Okay, then we'll also quickly do the adenoid cystic carcinoma and if possible future of acidic cell carcinoma. But again the same point कि कौन से दो ट्यूमर्स याद रखने जरूर, एक प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर, म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, बाकी आपको ये सारे बेनाइन ट्यूमर्स की लिस्ट नहीं आती हो, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की नहीं आती हो, डजंट मैटर, दो तीन नाम याद कर लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा डिटेल में करना है, अगेन इसकी ऑस्ट भी आ सकती है और म्यूकोएपिडर्मोइड की कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर। अच्छा, एक यहाँ पे salivary gland में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो बेनाइन ट्यूमर्स हैं
वो मोस्टली मेजर साइवरी ग्लैंड को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि स्टेटमेंट है जो कि रॉबिन्स में बोर्ड में लिखी हुई है, सो आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज ये बात सबको अगर याद यहाँ से ले ले इस लेक्चर से, तो यू कैन टेक इट कि जितने बिनाइन ट्यूमर्स है ना वो मेजर साइवरी ग्लैंड को इन्वॉल्व करते हैं, और जो माइनर अगर माइनर साइवरी ग्लैंड का ट्यूमर है तो इट इज मोर लाइकली टू बी मेलिग्नेंट। सो ये इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन है कि अगर बिनाइन है तो वो यूजुअली मेजर साइवरी ग्लैंड को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और जो माइनर साइवरी ग्लैंड जब ट्यूमर साइवरी ग्लैंड ट्यूमर से इन्वॉल्व होते हैं तो वो यूजुअली मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज एन inverse relationship. This is a statement which is written in bold in Robbins. तो अगर इसको किसी को नहीं समझ में आए, जो डिस्कशन पार्ट है, यू कैन डिस्कस इट। जैसे जैसे ग्लैंड का साइज बड़ा होता जाएगा ज्यादा चांस होगा कि बिनाइन होगा, जैसे जैसे ग्लैंड का साइज छोटा होता जाएगा ज्यादा चांस है कि ये जो है मेलिग्नेंट लीजन होगा। सो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा 50% ट्यूमर्स ऑफ प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में कोई चीज, इसकी तो कोई भी चीज आपको आ सकती है, सारी है, इसकी मॉर्फोलॉजी भी आ सकती है, इसका मेलिग्नेंट काउंटर पार्ट का नाम भी पूछा जा सकता है, यानी एवरी पॉसिबल थिंग कैन बी आस्क्ड। सो मोस्ट कॉमन साइवरी ग्लैंड ट्यूमर मिडिल एज में, मोर इन वुमेन, मोर इन मिडिल एज एंड मोर इन वुमेन देन इन मेन, स्लोली ग्रोइंग होता है। और एक लेकिन चीज जो इसकी अजीब होती है कि जब हम पढ़ते थे ना न्यूप्लेजिया के चैप्टर में, तो हम ये कहते थे कि जो बेनाइन ट्यूमर्स है वो यूजुअली सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं और वो सराउंडिंग टिश्यू को इन्फिल्ट्रेट नहीं करते। लेकिन समटाइम्स व्हाट इज देयर कि ये होता है कि जो 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 बेनाइन ट्यूमर्स है वो भी थोड़े थोड़े नॉर्मल टिश्यू के अंदर चले जाते हैं। तो इसीलिए हम जब हम कहते हैं कि मेलिग्नेंसी का एक सबसे क्राइटेरिया कि कौन से ट्यूमर्स हैं, जो सबसे मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया ऑफ मेलिग्नेंसी इज मेटास्टेसिस इवन नॉट इन्फिल्ट्रेशन टू द सराउंडिंग टिश्यू। तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इज वन एग्जांपल ऑफ दैट कि ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, लेकिन इन मेनी केसेस, ठीक है, या इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट मे हैव इन्फिल्ट्रेशंस इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। सो अगर ये सराउंडिंग टिश्यू में इन्फिल्ट्रेट करता है तो बहुत दफा अगर इसकी एक्सीजन इनएडिक्वेट होती है तो ट्यूमर रिकर कर जाता है। ठीक है, अगेन पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज इंपॉर्टेंट होती है, उसका ट्यूमर रिमूव होता है, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट डायग्नोसिस देता है कि प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, बट व्हाट हैपेंस कि वो दोबारा रिकर करता है तो वो समझता है कि मुझे कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर हो गया। मेलिग्नेंट नहीं होता, इसमें रिकरेंसेस प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में हो सकती है। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक सारे ट्यूमर ना करेंगे डिटेल में, लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्लियोमॉर्फिक क्योंकि कॉमन ट्यूमर है, इसकी सारी चीजें करनी है। पैरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व करता है, विमेन में कॉमन होता है, स्लोली ग्लैंड ग्रोइंग होता है, समटाइम्स के सराउंडिंग टिश्यू के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाता है। इसीलिए जो है ना जब आप उसको बार बार रिमूव करते हैं तो ट्यूमर कैन रिकर। अब हिस्टोपैथोलॉजी, पहले तो इसका सेल ऑफ ओरिजिन। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्टोजेनेसिस और सेल ऑफ ओरिजिन, there has been a long debate related to the what is the cell of the origin of pleomorphic adenoma. The cell of the origin of the pleomorphic adenoma is the reserve cell. ठीक है, रिजर्व सेल कह ले या उसको स्टेम सेल कह ले, मतलब जिसकी जैसे एपिथेलियल सेल होते हैं ना, उसको पता है कि मैंने एक एपिथेलियल मेलिग्नेंसी बना दी है, लेकिन ये जिस सेल से अराइज होता है that can have divergent differentiation. इसको प्लियोमॉर्फिक क्यों कहते हैं? प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है जिसकी वेरिएबल हिस्टोलॉजी होती है। क्योंकि इस ट्यूमर की वेरिएबल हिस्टोलॉजी होती है इसलिए इसको प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा कहते हैं। दूसरा नाम इसका बेनाइन मिक्स्ड ट्यूमर है। So what is the histogenesis? What is the cell of the origin? The cell of the origin is the reserve cell, जो डिफरेंशिएट कर जाता है बोथ लाइंस में इनटू द एपिथेलियल एंड मेसेंकाइमल डिफरेंशिएशन। जब हम एपिथेलियल डिफरेंशिएशन कहते हैं तो इसका मतलब है कि या तो वो ग्लैंड होगा या स्क्वेमस एपिथेलियम होगी, और या तो वो ग्लैंड होगा या वो स्क्वेमस एपिथेलियम होगी। और मेसेंकाइमल डिफरेंशिएशन क्या होती है कि जो उसमें मिक्सॉइड पार्ट होता है, जो उसका स्पिंडल सेल पार्ट होता है, तो मिक्स्ड ट्यूमर में एपिथेलियल कंपोनेंट भी होगा और साथ उसके मेसेंकाइमल डिफरेंशिएशन होगी। इसलिए जब हम इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं, जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कैसे नजर आएंगे? एपिथेलियल सेल्स मिलेंगे जो प्रोलिफरेट कर रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रैंड्स एंड डक्ट्स, और मायोपीथियल सेल्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ शीट्स which may produce a mucoid material which separate the cells producing a myxomatous or cartilaginous appearance. Cystic areas भी हो सकते हैं after many years. After many years this can convert into a malignant tumor. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं
कि प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा का मैंने जैसे आपको बताया कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, मिक्स ट्यूमर होता है। मिक्स ट्यूमर के मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट को क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट मिक्स ट्यूमर। ठीक है, सो इट्स द मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट मिक्स ट्यूमर। अगर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा बहुत दिन तक रहता है तो इट कैन कन्वर्ट इनटू अ मैलिग्नेंसी व्हिच इज कॉल्ड मैलिग्नेंट मिक्स ट्यूमर। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, यूजुअली सुपरफिशियल पेरोडेक्टमी करते हैं। अब व्हाट इज ओवर हियर इज there is a swelling on the lateral part of the there is a swelling on the lateral part of the on the lateral part of the face। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली साइवरी ग्लैंड होता है, यहाँ पे क्या, ये क्या हुआ है, यहाँ पे साइवरी ग्लैंड एनलार्ज हो गया है और यू कैन सी द स्वेलिंग ऑफ द साइवरी ग्लैंड। ये जब इसको सर्जन ने सर्जिकली रिमूव किया तो दिस इज अ नॉर्मल टिश्यू एंड दिस होल थिंग इज द lesion which largely appears pretty circumscribed। Circumscription is a feature of benign tumors। ठीक है, अब मैंने इसको माइक्रोस्कोप में देखा, माइक्रोस्कोप में मुझे बहुत सारी ब्लू चीज नजर आ रही है। जब मुझे बहुत सारी ब्लू चीज नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि मेसेनकाइमल या कार्टिलेजिनस डिफरेंशिएशन है। ठीक है, इस तस्वीर, इस फोटो माइक्रोग्राफ में you can appreciate very clearly the two components। One is this bluish appearance thing which is cartilage, and the second is this epithelial component। So this picture is very characteristic। This blue thing is the cartilage, and as you move here, this is the epithelial part again, this is the epithelial part, this is the cartilage। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ से cartilage मैं भी नहीं diagnose कर सकती, लेकिन blue सी चीज नजर आ रही है साइड में, this is cartilage। ये याद रखिएगा, this may be there in the exams। So Warthin tumor is another benign tumor। It is formed by the double layer of epithelium, cyst-like spaces बनाता है, papillary-like appearance होती है। इसके स्ट्रोमा में लिम्फोइड टिश्यू होता है, स्लोली ग्रोइंग होता है। दो तीन चीजें जो वॉर्दन ट्यूमर के बारे में, ये इसकी मॉर्फोलॉजी है। द मॉर्फोलॉजी आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू मेमोराइज, लेकिन याद रखिए क्योंकि बहुत इसकी कैरेक्टरिस्टिक सी मॉर्फोलॉजी होती है कि इसमें एपिथेलियल पार्ट होता है और ये इसका लिम्फोइड पार्ट होता है। ठीक है, ये एक अजीब सी चीज है इस ट्यूमर की, लेकिन इस ट्यूमर बहुत सारी अजीब चीजें भी है। ये बेनाइन है, बायलेटरल होता है और स्मोकिंग के साथ इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। ठीक है, बॉडी में पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा है, इसकी स्मोकिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, यूरिनरी ब्लैडर की। इसी तरह फॉर सम वियर्ड रीजंस this Warthin tumor has very strong association with smoking। ठीक है, बाज़ दफा इस तरह की रेयर चीजें होती हैं वो एग्जाम में आ जाती हैं। ये जैसे हमने कहा था कि साइवरी ग्लैंड ट्यूमर यूजुअली वुमेन में कॉमन होती है, लेकिन दिस इज द ट्यूमर व्हिच इज कॉमन इन मेल। क्यों कॉमन इन मेल है, क्योंकि स्मोकिंग से रिलेटेड होता है। फिर इसकी मॉर्फोलॉजी में ये पिंक पार्ट होता है और ये स्ट्रोमा होता है जिसको हम लिम्फोइड स्ट्रोमा कहते हैं। देन म्यूकोएपिडर्मोइड ट्यूमर, बल्कि इनफैक्ट म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा। Mucoepidermoid carcinoma is the most common malignant tumor of the salivary gland. What was most common benign? It was pleomorphic adenoma। You have to go through each and every part of the pleomorphic adenoma। So mucoepidermoid carcinoma basically तीन तरह के सेल होते हैं, squamous, intermediate और glandular cells। It is composed of sheets and masses of epidermoid cells, cystic spaces, mucus secreting cells। There is no cartilage-like appearance, so that is how it is different from pleomorphic adenoma। They are of varying speed of the growth and degree, mostly are slow growing, invade the local tissues to limited degree, occasionally can metastasize to lymph node, lung and skin। Salivary gland के जो malignant tumor है वो usually local recurrences करते हैं, लेकिन sometimes they can metastasize to lung and skin। Mucoepidermoid gland, they are usually harder than mixed tumors, become fixed when large। They do not cause facial paralysis। ठीक है, एक रूल ये है कि अगर किसी को facial paralysis हो रहा है यानी facial nerve involve हो गई है तो फिर वो ट्यूमर बहुत अनलाइकली कि बिनाइन होगा। ठीक है, क्लिनिकली फेशियल पैरालिसिस is a sign of malignancy until proven otherwise। How to diagnose? Fine needle aspiration पे हम कर सकते हैं, we are short of time, so अभी fine needle aspiration डिस्कस करेंगे। इसको FNAC कहते हैं, उसपे salivary gland tumors we are able to at least give some hint regarding the salivary gland tumor। Superficial पेरोडेक्टमी करते हैं, sometime radiation की जरूरत होती है। अगेन हिस्टोलॉजी यहाँ पे म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा की भी डू नॉट एक्सपेक्ट कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपको मॉर्फोलॉजी म्यूकोएपिडर्मोइड की आती हो, बट इफ यू कैन सी दीज आर द सिस्टिक स्पेसेस। ठीक है, जहाँ पे भी बॉडी में जगह बन रही है, फूड है, तो वहाँ पे ये छोटी छोटी सिस्टिक स्पेसेस भी, लेकिन ये सिस्टिक स्पेसेस आपको बहुत अच्छी ग्रॉस पे नहीं चलती, माइक्रोस्कोपी पे होती है। और इसके लिए जो कंफर्म करने के लिए स्पेशल स्टेन करते हैं, दैट इज एल्शियन ब्लू। ठीक है, बाज़ दफा क्या होता है कि आपको ये सिनेरियो दिया जाता है
कि एक से 20 ईयर मेल है, उसकी सबमेंडिबुलर उसकी पैरोटिड ग्लैंड में या माइनस ग्लैंड में एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जिसमें LCN2 पॉजिटिव है, सिस्टिक स्पेसिस है, म्यूसिन है। नाउ व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस? ठीक है, जब म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा आपसे पूछा जाएगा तो आपको सिनेरियो में बहुत सारे हिंट्स दिए हुए होंगे और आपको अगर मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट याद होगा आपको वहीं से पिक हो जाएगा। अगर आपको याद होगा कि हमें बताया था कि इसका इसमें ग्लैंडुलर सेल होते हैं, म्यूसिन होता है, आपको वहां से रिकॉल, यानी मल्टीपल हिंट्स होंगे अगर आपसे रेयर चीज पूछी जाएगी जनरली। तो इस तरह अगर मोटी मोटी म्यूकोएपिडर्मोइड के बारे में 2-3 चीजें याद कर लेंगे, ग्लैंड है, म्यूसिन है, म्यूसिन है तो LCN2 पे पिक होता है, तो इट विल हेल्प इन डूइंग योर MCQs। नाउ द एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा। ठीक है, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा में कुछ और आपको याद हो या ना हो, लेकिन एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा में आपको क्या चीज बहुत कॉमन होती है, इज द पेरीन्यूरल इन्वेजन। अगर आप पूछे कि सलाइवरी ग्लैंड में एक ट्यूमर बताए जिसमें सबसे ज्यादा कॉमनली पेशेंट्स में पेरीन्यूरल इन्वेजन होती है, तो दैट इज एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा। ठीक है, दोबारा उस तरफ आती हूँ कि अगर आपसे एडिनोइड सिस्टिक के बारे में सारी चीज आपको ना याद रहे, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा टर्म इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसका मतलब है कि मैलिग्नेंट तो है ही, लेकिन अगर एक ट्यूमर जिसमें बहुत सारी पेरीन्यूरल इन्वेजन है, द आंसर इज एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा ट्यूमर के पॉइंट पे एम्फसाइज इसलिए नहीं करी कि इट इज नॉट एबल फॉर यू to memorize and to go through all of them in detail. This is probably the last slide. Okay, so I'm here if you want to ask any question. Assalamualaikum, ma'am. Ma'am, I wanted to ask you, once the salivary gland is completely damaged due to xerostomia or Sjogren, is it reversible? Can it be treated and become functional again? Okay. Usually, as I talk about, once the damage, like if there is initial damage, ठीक है, initial damage पे क्या होगा, inflammation होगी, edema होगी, tissue is in the process of repair. ठीक है, अगर उस वक्त डिजीज डायग्नोज हो जाती है तो हम स्टीरॉइड्स देते हैं, जब यूजुअली जनरली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में क्या देते हैं जिससे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो, जैसे आप स्टीरॉइड्स वगैरह डिफरेंट प्रोपोर्शन में, और कुछ इम्यून मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स हैं जो दी जाती हैं जो कि बॉडी की इन्फ्लेमेशन, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम को कम करती है ताकि वो कम डैमेज करे। उस टाइम में टिश्यू को टाइम मिल जाता है रिपेयर होने का। ठीक है, तो अगर टिश्यू रिपेयर हो जाता है तो वो ठीक है, लेकिन अगर टिश्यू इतना डैमेज हो गया है कि जो नॉर्मल स्लाइवरी ग्लैंड था दैट इज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रोसिस, तो फिर उसके बाद वो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाता है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात आपको ये रिकॉल करूंगी कि जब हम जो जनरल पैथोलॉजी में इन्फ्लेमेशन पढ़ते थे ना, उसमें एक जो उसका कंपोनेंट रिपेयर वाला था, उसमें क्या था कि अगर किसी टिश्यू में डैमेज हो जाता है तो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप रिकॉल करें तो वहाँ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, कंप्लीट रिपेयर, फिर उसके बाद था माइल्ड डैमेज था, और फिर वो था जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं या स्कार कहते हैं। और ये रूल बॉडी में सब जगह होता है, जैसे लिवर है, लिवर में हेपेटाइटिस हुआ, ठीक है, अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस में, क्रॉनिक हेपेटाइटिस की इनिशियल स्टेज है, वहां पे ड्रग ले ली, लिवर डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर लिवर डैमेज होता रहा और जो लिवर का पेरेन्काइमा थे, जो जैसे फंक्शनल सेल्स थे, those have been replaced by fibrosis, then the process becomes irreversible. This is true for salivary gland, this is true for liver, and this is true for even lung. जैसे अब हम ये कोरोना वायरस में बेसिकली क्यों इतना डेंजरस है, क्योंकि it is causing interstitial lung disease. Interstitial lung disease का ultimate fate fibrosis है. Okay, so basically it is the fibrosis which can lead to the consequences in those patients who are asymptomatic. So this is general. Is it okay? Okay. Okay, thank you, ma'am. So, any other question? So